Good morning, everyone. We do program 3 on page number 425. You will go through the program. Okay, children, I'll read the program for you now. A class sorter contains an array of 100 integers. Some of the member function methods of sorter are given below. The class name is sorter. The data members are any array of 100 integers. The name of the array is not given, so we can take any name. Now the member functions are given. First member function is a constructor, sorter. The next member function is read list to input 100 integers. The third member function is display list to display the list of sorted integers. The fourth member function is int index of minimum, and int start index is being passed as parameter. So this returns the index of the smallest integer in the array between the start index and the last index. And the last function is selection sort. It sorts the array in ascending order using selection sort technique. Specify the class sorter, giving the details of the constructor and the functions void display list, int index of minimum, void selection sort. You may assume that the other functions are written for you, but we will have to write them since we have to execute them. You do not need to write the main function, but we will be writing main also. Otherwise, how will we execute our program? So let us do this program. First statement will be the import function java.util.asterisk. Then we have to declare a class sorter. This is the name of the class. Then we have to declare the member. Yes. Ma'am, java.io package. You want to do it with that? Okay, no problem. I'll Yes, change the package. Is it okay? Now, yes, ma'am. int arr equals to new int maximum size is given as 100. Okay, then we are taking few more variables over here. Now I am declaring the member methods. The first member method was a constructor for I equals to 0, I is less than 100, I plus plus. What is it doing? ARR at position I. It is initializing 0 to all the elements of the array. This is the end of the function. Next, to enter the array size, we are taking another constructor here. First one was the default constructor without any parameters. The second one, n equals to nx. We will be entering the array size from the user and then passing it to the constructor here, the second constructor in nx, and nx will be initialized to n. Next, the read list function. The read list पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं, तो फिर n कैसे एंटर कराएं यूजर से बताइए? इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कर दें, इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कर दें. See, it is written a class sorter contains an array of 100 integers. अब 100 numbers तो हम enter करने वाले नहीं है ना, हमें कुछ small size लेना होगा. Do you want to enter 100 numbers and sort them using selection sorter? No, we will take a smaller size, maybe 10 or maybe 15 or maybe 20. So that size has to be entered from the user. That is why we have used this constructor separately. If you want, you can make it here itself. No problem. ठीक है, इसी में n को nx से कर दो, एक ही बात है. यहाँ पर उन्होंने ये वाला कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया हुआ है. Yes, Agrima, you want to ask something? मैम, if we will take two parameterized constructor, मैम इस प्रोग्राम में नहीं, मैम वैसे अगर हम दो parameterized constructor लें, so मैम how we will pass values to them? मैम वो तो object creating के टाइम पर ही हो जाती है ना. डिफॉल्ट तो अपने आप ही कॉल हो जाएगा. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होगा कि उनका पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होगा, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो. अगर मैंने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पास करी है, लाइक हियर, देन इट विल बी अ डिफरेंट कंस्ट्रक्टर. बट इफ आई पास टू इंटीजर वैल्यूज, देन इट विल बी अ डिफरेंट कंस्ट्रक्टर. सो व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास obj1, अगर उसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एंड अगर उसमें दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में होता है.
Clear? While Okay, declaring ma'am. the object, the number of parameters will decide which constructor is being called. So let us make the function now void read list. मैम हमें तो Buffer सेकंड reader? वाला दे ही नहीं रखा है, हाँ? तो हम क्यों बना रहे हैं उससे? मैम तो क्या सेकंड वाला अगर कंस्ट्रक्टर अगर मैं ये नहीं बनाती हूँ, you want me not to make this, ठीक है, तो तुम 100 एंट्री कर लेना. मैं सिर्फ अपना काम आसान करने के लिए कर रही हूँ कि मुझे 100 वैल्यूज एंटर ना करानी पड़े. Understood my point? ओके मैम. मुझे 100 वैल्यूज एंटर नहीं करानी है. That is why I am entering here. I am making this constructor and entering the value of n here, so that I can decrease the number of values. अच्छा, ये इसमें मैंने बफर रीडर लगाया है, तो यहाँ पर throws IO exception लिखा जाएगा. ये याद है? जिस भी फंक्शन के Yes, ma'am. जिस भी फंक्शन के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर बफर रीडर लगाते हैं, उस फंक्शन के आगे throws IO exception लिखा जाता है. So buffer reader br equals to new buffered reader. Here new input stream reader system dot in. और बताइए और क्या करूं? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? यू हैव टू एंटर द नंबर. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द array elements for I equals to 0, I is less than n, I plus plus. array elements का size n में आ चुका है. I and n are global. देखिए, these are class variables, so they can be used in all the functions of the class. इसलिए मैंने यहाँ पर locally declare नहीं किया. Clear? arr at I equals to integer dot parse int br dot read line. This much is clear? मैम यहाँ पर हम लोग this dot n भी लिख सकते हैं ना? क्यों लिखेंगे? this dot n क्यों लिखेंगे? मैम वो क्लास वेरिएबल n है. यहाँ पर अगर यहाँ पर भी n होता और यहाँ पर भी n होता तब लिखते, जिससे कि हमें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो कि पैरामीटराइज्ड वेरिएबल है या ये क्लास वेरिएबल है. सिंस ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग है, तो दिस डॉट n लिखने की जरूरत ही नहीं है. जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी का n होगा. ओके ओके मैम. when we create an object of this sorter class, तो उसी ऑब्जेक्ट का n होगा ना. अंडरस्टूड है? this dot n नहीं लिखना है. Yes, ma'am. आप लिखेंगे जब एम्बिग्यूटी हो, सेम वेरिएबल नेम यूज हो यहाँ पर और यहाँ पर. n इक्वल्स टू n अगर आ रहा है, तो n इक्वल्स टू n से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तब लिखेंगे this dot n इक्वल्स टू n. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन इज Okay, ma'am. डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन. system dot out dot println. Nobody else is having any problems. Only Agrima and Prerna have been asking questions. Please, the rest of you, सिर्फ क्लास में बैठना ही काफी नहीं है. अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए. System dot out dot println arr of I semicolon आ गए. This is the end of for, this is the end of the function display list. Till here, I don't think anybody is going to have any problems. Any problems till here? No, ma'am. Aditi, have you understood everything? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Next, int index of minimum. Int index of minimum. Int start index. This is being passed as parameter. So here we are going to take a minimum variable जिसमें हम initialize कर रहे हैं जो
यहाँ पर पास कर रहे हैं. Then we are going to start the J loop. J is less than n, less than. मैम हमने स्टार्ट इंडेक्स को मिनिमम में क्यों डिक्लेयर किया है? मैम स्टार्ट इंडेक्स में क्या है? सिलेक्शन सॉर्टिंग का प्रोग्राम सोचिए. स्टार्ट इंडेक्स में 0 होगा. We are passing the index of the first integer of the first element of the array. Suppose it is 0. So minimum में क्या किया है? 0 इनिशियलाइज किया है. ठीक है. और यहाँ पर किया है j equals to 0 plus 1, मतलब 1 से लेकर n तक लूप चलेगा. If ARR at j, ARR at position 1 is less than ARR at minimum, तब क्या कर रहे हैं हम? मिनिमम में हम स्टोर कर रहे हैं j की वैल्यू. हम उसमें क्या करते थे ये बताइए पहले आप. सिलेक्शन सॉर्टिंग में क्या करते थे? मिनिमम वैल्यू निकालते थे अमंगस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे एंड उसका इंडेक्स स्टोर करते थे किसी वेरिएबल में, POS में या मिनिमम में. डू यू रिमेंबर द प्रोग्राम? Yes, ma'am. सिलेक्शन सॉर्टिंग. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. हमने मिनिमम में स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज कर लिया. सपोज इसमें स्टार्ट इंडेक्स लिया हुआ है, फिर j की वैल्यू इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स प्लस 1, दैट मींस 1 से शुरू करिए n तक. इफ ARR at 1, अभी 1 है, is less than ARR at 0, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए. अदरवाइज क्या होगा? j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, j will become 2. So ARR at 2 will be compared with ARR at minimum. If it is smaller, then minimum equals to j. So this loop is going to find the index of the minimum value. जो सबसे छोटी वैल्यू होगी array की, उसका इंडेक्स स्टोर करेगा min के अंदर. And here we are going to return the minimum index. Just a second, 9 has come instead of brackets. This is what it is doing. Ma'am. Yes, one by one. मैम इसमें पहले हमने मिन में स्टार्ट इंडेक्स से पहले आई का लूप क्यों नहीं लगाया है? 0 से लेकर. I का लूप की जरूरत नहीं है ना. हमने सिर्फ मिनिमम वैल्यू लगाया. हम एक लूप लगाएंगे सिलेक्शन सॉर्टिंग वाले फंक्शन के अंदर. देखो, दो फंक्शंस में ब्रेक कर दिया है. जो अभी तक हमने एरेज में पढ़ा था क्लास 11th में, क्लास 10th में, हमने दो लूप्स लगाए थे. एक आई का लूप लगाया था, एक जे का लूप लगाया था. हम आई वाला लूप लगाएंगे सिलेक्शन सॉर्टिंग वाले फंक्शन के अंदर, एंड जे वाला जो लूप लगाएंगे वो इंडेक्स ऑफ मिनिमम फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमने दो फंक्शंस में ब्रेक कर दिया ये काम. इंडेक्स ऑफ मिनिमम फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द मिनिमम वैल्यू. ओके. एंड उसमें क्या कर रहा है? जो इंडेक्स ऑफ मिनिमम वैल्यू है उसको इंटरचेंज कर रहा है आई वाले लूप में सिलेक्शन सॉर्टिंग वाले फंक्शन में. इसके बाद मैं सिलेक्शन सॉर्टिंग का फंक्शन लिखती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड इट. मैम यहाँ पे हम आई का लूप भी चला सकते हैं ना जे की जगह? हाँ, वेरिएबल सेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. वेरिएबल सेम रख सकते हैं. यहाँ ये तो होगा, अगर आई का लूप चलाएंगे तो दिस आई विल बी लोकल टू दिस फंक्शन. ओके. सिलेक्शन सॉर्ट. मैम इंडेक्स में 0 कहाँ से आया? लेट मी कंप्लीट द अदर फंक्शन, देन आई विल एक्सप्लेन देम टुगेदर. मैम स्टार्ट इंडेक्स में मैम 0 है या एरे का फर्स्ट एलिमेंट है? इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 0. पहले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा ना. एलिमेंट नहीं है, इंडेक्स है उसका. ओके मैम हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मिनिमम इक्वल्स टू 0, तो मैम स्टार्ट इंडेक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अभी मेरे को सिलेक्शन सॉर्टिंग वाला फंक्शन लिखने दो, तब समझ में आ जाएगा. ठीक है. Just 2 minutes. Wait for 2 minutes. For I equals to 0, I is less than n minus 1, I plus plus. M equals to index of minimum, and यहाँ पर मैंने पास किया I. देखिए ये वाला, देखिए स्टेटमेंट. temp equals to ARR of I. इसमें क्या किया है? उस वाले फंक्शन को कॉल किया है. ARR of I equals to ARR of M, and ARR of M equals to temp. This is end of I loop. This is end of the function. Now we start with public static
main string args throws IO exception. Now see this, ये सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन के अंदर आई हैव कॉल्ड दिस इंडेक्स ऑफ मिनिमम फंक्शन. सिलेक्शन सॉर्ट का जब लूप बनता है, सिलेक्शन सॉर्ट का जब लूप बनता है तो दो लूप्स बनते हैं, एक आई का लूप बनता है, एक जे का लूप बनता है. आई का लूप होता है i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन i माइनस 1, i प्लस प्लस, ऐसे ही बनता है. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में i स्टोर करते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टोरिंग मिनिमम इक्वल्स टू i. समझ में आ गया? मिनिमम इक्वल्स टू i, that means 0th index, 0 is being stored in minimum and this 0 is being passed over here, और ये बनता है inner loop. Starting from here till here, this is the inner loop. Inner loop में क्या होता है, j equals to i plus 1, ऐसे ही बनता है, j equals to i plus 1, j is less than n, j plus plus. If ARR of j is less than ARR of minimum, then minimum equals to j. इससे क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ लेते हैं हम पहली बार में और उसका इंडेक्स मिनिमम में स्टोर करते हैं. मिनिमम में ही स्टोर किया है हमने, लेकिन जो अंदर वाला लूप है वो हमने अलग फंक्शन में बनाया हुआ है. एंड इस मिनिमम की वैल्यू को यहाँ से रिटर्न किया है जो कि m में आकर स्टोर हो गई. सो m इज स्टोरिंग द मिनिमम index, the index of the minimum value. I should say if the values are from let me say the values are 10, 20, 30, 9, 8, 7, something like this. The minimum value is 5. अब उसका जो भी इंडेक्स होगा वो m में आकर स्टोर हो जाएगा. सो temp equals to ARRI, मतलब 0th पोजीशन के साथ जो मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स होगा वो इंटरचेंज हो रहा है. तो मिनिमम वाली वैल्यू 0th इंडेक्स पे आ रही है, ये temp वेरिएबल क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है. ऐसे ही करते हैं ना सिलेक्शन सॉर्टिंग में, हमने छोटा सबसे छोटा एलिमेंट निकाला और उसको इंटरचेंज किया. क्या हुआ अग्रिमा? यस अग्रिमा, यू वांट टू से समथिंग? मैम इसको ऐसे, देखो यस मैम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मिनिमम को हम लोग क्लास वेरिएबल ले लें, उसके बाद फिर मैम जो इंडेक्स ऑफ मिनिमम वाला फंक्शन है उसमें मिनिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट ले, और मैं सिलेक्शन सॉर्ट का पूरा प्रोग्राम इसी फंक्शन के अंदर दे. मैम से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आधा हो रहा है. मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ. ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है. यस मैम. अब अगर मेरी वैल्यूज इसमें हैं, सपोज 12, 23, 3, 65, 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सबसे पहले क्या कर रहा है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन में int temp और m i equals to 0. सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन में क्या है, i equals to 0. बुक में देखते रहिए. Is it less than n minus 1? n minus 1 मतलब n की वैल्यू 10 है. Is it less than 9? Yes. So index of minimum function कॉल हो रहा है, index of minimum, and उसमें वैल्यू पास हो रही है i that means 0 पास हो रहा है. सबसे पहले ये हो रहा है, ठीक है. जब 0 उसमें पास हो रहा है तो इंडेक्स ऑफ मिनिमम में स्टार्ट इंडेक्स में आ जाएगा 0, ओके. और मिनिमम इक्वल्स टू 0 और उसमें j इक्वल्स टू 1 से लेकर लेस देन n तक सारे एलिमेंट्स कंपेयर करेगा और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो min में आ जाएगी. सी दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एट पोजीशन 2. यही है मिनिमम वैल्यू हमारे एरे में, बताइए. तो Yes, ma'am. जो j का लूप है वो 9 टाइम्स चलेगा एंड इस लूप के बाद मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. इज दिस मच क्लियर? जब हमने i की वैल्यू 0 पास की है इंडेक्स ऑफ मिनिमम में, तो मिनिमम की वैल्यू 2 निकल कर आई जो कि रिटर्न कर रहा है वहां पर. और ये वैल्यू कहाँ स्टोर हुई, m इक्वल्स टू 2. रिटर्न वैल्यू m में स्टोर हो रही है. सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन में वापस आइए. इज दिस मच क्लियर? Now what we are doing, Yes, we are interchanging using the temporary variable. We are interchanging AR at position I. That means we are interchanging 12 and 3. We are interchanging 12 and 3. तो अब 12 की जगह पे क्या आ जाएगा, 12 की जगह पे आएगा, 12 की जगह पे क्या आएगा, 3 and
3 की जगह पे क्या आ जाएगा 12. ऐसे ही करेंगे हम. आफ्टर द फर्स्ट ये आ गया. बताइए सबसे छोटा एलिमेंट सबसे ऊपर आ गया. yes or no children, have you understood this much? Yes, ma'am. Yes, Till here. ma'am. Then when I equals to 1, अब इसके बाद क्या है I equals to 1. Next iteration in the selection sort, I equals to 1. तो index of minimum में क्या पास हो रहा है 1. देखिए I पास हो रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है हमारे, ये इंडेक्स ऑफ मिनिमम फंक्शन में जा रहा है. दैट मीन स्टार्ट इंडेक्स में जा रहा है. तो स्टार्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 1. तो इसमें मिनिमम की वैल्यू किससे इनिशियलाइज हुई है 1 से. दैट मींस अब 23 से लेकर 18 तक का एरे चेक हो रहा है. 3 अब चेक नहीं हो रहा है. 23 से 18 तक का एरे चेक हो रहा है. मिनिमम की वैल्यू 1 है. तो j इक्वल्स टू स्टार्ट इंडेक्स प्लस 1. तो j विल स्टार्ट फ्रॉम 12. अब जो सेकंड मिनिमम एलिमेंट है वो कौन सा है, वो है 4. वो है 4. इसका इंडेक्स क्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है. तो मिनिमम में क्या होगा, मिनिमम में स्टोर हो जाएगा 6. क्लियर, मिनिमम में स्टोर हो जाएगा 6 और ये रिटर्न होगा यहां से. तो m की वैल्यू हो जाएगी 6 जो रिटर्न हुआ हमारे सिलेक्शन सॉर्ट में. अब AR ऑफ I मतलब AR ऑफ 1, I की वैल्यू 1 है. तो 6 जो है व्हाट आई एम सेइंग, हाँ 0 1 2 3 4 5 6, ये जो 4 है ये वाला, this will be interchanged with 23. So 4 will come over here and 23 will come over here. So अब कैसा दिखाई देगा हमें, array 3 then 4 then 12 then 65 then 10 then 9 then 23 then 78 then 6 then 18. इस तरीके से दिखाई देगा. Is this clear now? अब हमारे ऊपर के दो एलिमेंट्स जो है, ऊपर के जो दो एलिमेंट्स है देखिए 3, ये क्या हुआ, ऊपर के जो दो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड है, बाकी सारे एलिमेंट्स अनसॉर्टेड है. फिर I की वैल्यू हो जाएगी 2. दैट मींस अब 12 से स्टार्ट होगा एंड 2 विल बी पास्ड इनटू द इंडेक्स ऑफ मिनिमम फंक्शन. दिस इज द स्टार्ट इंडेक्स नाउ. मतलब यहां से चेक करो अब मिनिमम वैल्यू. सो 12 65 10 9 23 78 6 एंड 18 में से मिनिमम वैल्यू चेक होगी और उसका इंडेक्स रिटर्न होगा. इज दिस क्लियर नाउ? हैव यू अंडरस्टूड द ड्राई रन ऑफ द प्रोग्राम? नाउ इफ एनीबॉडी हैज नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क. Yes, ma'am. Anybody who has not understood? Everybody has understood. Okay, I'll move to the program again. The notepad. I'll write the main here. So main में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले n की वैल्यू एंटर कराएंगे. यहाँ पर लिख लेती हूँ साइज. बफर्ड रीडर वाला फिर से कॉपी करना पड़ेगा हमें. Control C, Control V, then system.out.println, enter the size of the array. Size equals to integer dot, though in this question it is written that we don't have to write the main function, but we don't have another choice because we have to run the program, so we have to write main and check the execution. Now I'll be creating an object of the class sorter. OB equals to new sorter, and I'm going to pass size here. So the parameterized constructor will be called here. Fine, this much is clear. Now I'm going to call the read list function first to display, to enter the elements, sorry. Then I'm going to call the selection sort. Selection sort, inside the selection sort,
function we are calling the index of min. So it is not required to call that function. After that, I'm going to call the display function. Display list. This is all. These are the three functions which will be called. Now I'm going to save this program with the name sorter.java. Yes, anybody wants to ask something? Clear, ma'am understood. Okay. I'm going to command prompt now. Java C. Sorter.java. No errors. Sorter. What would you like to be the size of the array? Prerna, 100? Ma'am 5. Ma'am 6. Ma'am 5. Na 5, na 6. Let it be 10. Enter the array elements. See, are you getting the sorted list? It is correct. So that means this program is absolutely correct. You may have a look at the program again and ask me if you have any problems. Arushi, do you have any problems? मैम हमने आई को क्लास वेरिएबल क्यों लिया है? जरूरी नहीं है क्लास वेरिएबल लेना इसको, आप इसको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया जिससे मुझे अलग अलग यहाँ डिक्लेयर ना करना पड़े. रीड लिस्ट में, डिस्प्ले लिस्ट में, हर जगह आई यूज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिया. अदरवाइज आप अलग अलग भी कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम्स विद दैट. ओके, म्यूट योरसेल्फ, लेट आरुषि स्पीक नाउ. आरुषि, एनी प्रॉब्लम्स? Anisha, you are present today. Any problems? Unmute yourself. No, ma'am. You have understood the program? Yes, ma'am. Madhav. Talia, have you understood the program? Yes, ma'am. Shubhangi, Serena, Yes, ma'am. please be active in Yes, the class. ma'am. If you have not understood any part of the program, please ask. Sakshi, understood? There is no more time. Just 7 minutes are remaining in this meeting. So I'll just stop this meeting and I'll open the group so that you all can give your attendance. Thank you, children.